And plus physics के साथ problem ये होती है कि it's a very unpredictable subject. Yes. No matter how much you score in your examination, तो तुम्हारे रोज के टेस्ट हो रहे हैं, all that matters is कि तुम्हें main day पे कितना score आ रहा है, right? So I've also seen this कि there are many questions जो कि लगते हैं कि बहुत ज्यादा solve करना होगा, but once you read the question पता चलता है ये तो theoretical है, किसी एक point से clear हो गया, या फिर बहुत complicated है तो unit and dimension लगा के formula से unit से निकल जाता है. Exactly. So I would say पिछले नवंबर दिसंबर में I used to study around 4 to 5 hours efficiently, and वो धीरे धीरे बढ़ता गया, and जैसे एग्जाम पास आ रहा है तो फिर तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था फिर. It was like I was 12-13 hours a day because I'm Pranati Ghosh and this is my channel All Things Neat with Pranati. Today we have with us a very special guest, Devanshi Srivastava, and she also has a YouTube channel, so please check it out. So hi Devanshi. Yes, please. Hello, I'm Devanshi, and I have cleared NEET this year with a score of 646, and so I and Pranati have collaborated, and we will take this video forward. Yes. So in this video, we'll be discussing about how to approach physics from a zero level. Like for a student who's scoring about 70 or 80 marks, or even close to 100, how can he or she take it to around 140 in order to get a decent score? So, it's like if somebody is scoring around 70, 80 to 100, अगर इस threshold में कोई है, तो he is already like very familiar to the concepts. ऐसा नहीं है कि उसे कुछ भी नहीं आता. He is prepared. बस ये है कि marks नहीं बढ़ रहे. And सबका वो point आता है कि एक point के आगे marks नहीं बढ़ रहे. So it is kind of that kind of a case. तो मेरा भी था ऐसा एक पॉइंट, बट आई गेस फॉर इफ यू आर स्टक इन दिस जोन, दिस मीन्स दैट तुम्हें कॉन्सेप्ट्स तो आते हैं बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू perform well in your examination. You're not being able to do the questions given in your test. So for that, I would say कि question practice at this point should be rigorous, and that is the most important thing. अगर तुम इतना स्कोर कर रहे हो and you want to increase it, तो तुम्हें question practice से ही वो चीज और ज्यादा अच्छे से होगी. So first of all, I would like to speak for freshers, as in for students who are in class 12th and they'll be giving their NEET with boards exam. So for freshers, I would like to say ki for you need to attend classes, whether it's online or offline classes. You really need to get those concepts right and attend classes, and then practice maximum questions, make very good notes, and you should master your notes करने के बाद ही move on to questions. And अगर तब भी questions नहीं बन रहे हैं, then look at solved examples, illustrations, memorize its approach and कैसे उस question को हम लोग solve करें. Do not memorize the answers at all. And previous year questions से भी पता चल जाएगा कि what kind of questions come in your paper. So what is your view on this? Yeah, I think I agree with that. If you're a fresher, first of all, you can't really jump into solving questions. कि मैंने किसी book से पढ़ लिया and now I'm going to do the questions. This is not the way how you approach it, right? Physics is more about concepts. It is not like biology कि तुम्हें रट लेना है कुछ and then you'll be able to do the questions. This is not the way we approach physics. It's totally different in that way. So you should watch a lecture. Either you are enrolled in an online coaching, offline coaching, जैसा भी वो lecture देख लो. नहीं तो I have made a video on my channel कि YouTube पे how many teachers you can refer to on each subject and all of that. So you can refer to YouTube also. There are some great teachers on YouTube कि तुम्हें coaching की जरूरत ही नहीं है. You can totally refer to them and उनके तुम short notes refer कर लो. या if you are a fresher and you have a very limited time, like suppose इस साल का कोई fresher है, इसे अब चालू करना है, 11th का रिवाइज करना है, 12th अच्छे से करना है, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स यू कैन डू दैट कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे कुछ शॉर्ट नोट्स हैं एंड आगे भी शायद मैं अपलोड करूंगी अपने शॉर्ट नोट्स. तो आइदर यू कैन लाइक प्रिंट देम आउट एंड जब तुम लेक्चर देख रहे हो तो तुम मेरे शॉर्ट नोट्स में अगर तुम्हें कुछ लग रहा है कि मेरे को यहाँ कुछ ऐड करना है तो तुम ऐड कर लो. या फिर इफ यू हैव द टाइम एंड यू कैन पुट इन दैट मेनी आवर्स कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स खुद बना लूंगी इवन इफ आई हैव लेस टाइम, so you should make your own ones also. That will be even more beneficial because short notes बहुत edge देते हैं preparation में, and that is how you approach it. Yeah, definitely. Yeah, even I made short notes and I've also uploaded some of them on my Telegram channel also. So you can refer to any of the notes. Yeah, you can definitely do that. So, and I'll also share my full notes, like the notes I made out throughout the year.
and you can check those out so that you don't have to make fresh notes at this point, because honestly there's not Yeah, much time left now, क्योंकि yeah, and it's not feasible to start now कि अब मैं short notes बनाऊंगी. yeah. And about those question practice that you were talking about, कि अगर आपको question तब भी नहीं हो रहे हैं तो illustrated examples देख लो. That is something really good कि हाँ तुम्हें नहीं हो रहे question so you can go to illustrated examples. कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुम एक बार को एक तरह के 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यू विल डेवलप योर ओन अप्रोच ऑल्सो कि मुझे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरह अप्रोच करना है, भले ही बुक में किसी और तरीके से दिया हो. तो दैट इज हाउ यू मास्टर अ टॉपिक इन फिजिक्स आई गेस. मोर एंड मोर प्रैक्टिस and clearer your concepts are and the better marks you'll achieve. And most of the questions are same in, like, I think almost all the books. So कोई भी book हो, I think you can refer to it, but just stick to one either book. Yeah, just one, stick to one book. And in fact वो एक book start करने से पहले I think you should refer to PYQs कि देख लो कि actually हमारे एग्जाम में आते किस तरह के क्वेश्चन है, कि हम एकदम IITN ना बन जाए सॉल्व करते करते. Just see what kind of questions come in your exam and then you will be able to refer a book better कि मुझे इस तरह से ही यही वाले questions पे ज्यादा फोकस करना है. What books did you refer to when you were studying physics, like for all year long? Practice के लिए. I mostly referred to my coaching material. I studied from Allen, so I had modules provided to me by them, and I followed that only. Initially in class 12th, I used to do HCV and DC Pandey and all those books, but I thought that they are not very useful. I mean, module से भी हो जाता है, so I can score decent marks with modules. Yeah, definitely you can do that. Otherwise, अगर आप नहीं enrolled हो तो I guess first year में मैंने जब मैं पहले साल मैंने प्रिपरेशन चालू की थी तो मैंने ये कोचिंग से मुझे सिंगेज की बुक मिली थी एक्चुअली, तो मैंने वो रेफर की थी. बट उसमें गलतियां बहुत सारी हैं पीछे, शॉर्ट आंसर्स वगैरह जो दिए हैं पीछे, उनके सोल्यूशंस दिए हैं, कुछ आंसर्स दिए हैं, बहुत बहुत सारी मिस्टेक्स है. तो आई वुड नॉट से कि सिंगेज तुम रेफर करो, ऑल्दो उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं. एचसीवी भी मैंने रेफर की थी बट उसकी भी जरूरत नहीं होती है. कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने थे तुम एचसीवी पढ़ सकते हो, वरना इतनी कोई जरूरत नहीं होती है. तुम ऑनलाइन लेक्चर देखोगे तो उतना ही क्लियर होगा. हाँ, इस टाइम पे तो स्पेशली बिल्कुल भी उतना टाइम नहीं है. तो यू शुड आई गेस गो फॉर डीसी पांडे. डीसी पांडे मुझे अपने लेवल की एंड बहुत अच्छी बुक लगी थी, बहुत अच्छे से लिखी हुई है. द अप्रोच इज वेरी गुड. So you can go for DC Pandey and उसके बाद final practice में you can just do the PYQs. Yes. हाँ, मेनली द PYQs will tell you कि कौन से क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है, उसी पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करने. Right. Yes. Yeah, right. Definitely. Okay, so I have to ask you a question. कि like suppose somebody is a dropper, right? कि first year उसने paper दे दिया है with 12th and he is prepared. He scored in NEET around 500 550 तक के marks, 500 to 550 suppose, या even lower than that. So how would you say a student like that should start preparing for physics again for this year? So in my first attempt, I scored 496. So my physics score was around 100, 108 like that. तो उस पॉइंट पे ये होता है ना कि आपका फिजिक्स स्कोर इज स्टक एट 80, 90, 100 एंड उस पार्ट से निकलना इज काइंड ऑफ इजी, क्योंकि व्हेन यू आर एट दैट स्टेज यू नीड टू स्टडी मोर. दैट्स द प्रॉब्लम. वी नीड टू स्टडी मोर. सो बाय स्टडिंग यू कैन इंक्रीज दैट मार्क्स. फिर एक स्टेज आता है 120 से 130 वाला, विच इज वेरी बैड, क्योंकि उस स्टेज से निकलना इज लाइक इट वाज द टफेस्ट फॉर मी. Toughest, yeah, true that. हाँ, क्योंकि उस टाइम पे है कि यू स्टडीड एवरीथिंग, तो अब क्या करें, अब नया क्या करें कि मार्क्स बढ़े. तो आई वुड से कि प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. वही है, अप्रोच याद करो कि इलस्ट्रेशंस में कैसे अप्रोच कर रहे हैं, एंड न्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो व्हेन यू हैव टाइम. 6 months पहले मे बी यू कैन डू दैट, बट 3 महीने पहले यू वॉन्ट बी एबल टू डू दैट. तो जितना करना है अभी कर लो. So I used to do that. तो मेरा score in tests it has gone up till even 175. मतलब although NEET में it was less, but I think if you are accurate and if you have a good speed, you can do that. Yeah, and plus physics के साथ problem ये होती है
कि it's a very unpredictable subject. Yes. No matter how much you score in your examination, जो तुम्हारे रोज के टेस्ट हो रहे हैं, all that matters is कि तुम्हें मेन डे पे कितना स्कोर आ रहा है, right? Like even when I talk about myself, my highest score went up to I guess 160, इससे ज्यादा नहीं, but नॉर्मली हर टेस्ट में 150 से ऊपर ही रहते थे मेरे फिजिक्स के स्कोर, कभी बुरा गया तो 140 130 आते थे, बट इन माय नीट एग्जाम आई स्कोर्ड 125. इनफैक्ट मेरे जो कम मार्क्स आए हैं, ओनली फिजिक्स इज रिस्पॉन्सिबल. Yeah, even I scored 138. ओके या सो मेरे तो पूरे मार्क्स जो घुसे हैं एक्चुअली फिजिक्स में ही घुसे हैं. बायोलॉजी मेरी बहुत अच्छी फुल मार्क्स आए थे. केमिस्ट्री वाज आल्सो डिसेंट. आई स्कोर्ड 161 आई गेस इन केमिस्ट्री. आई डोंट रिमेम्बर. फिजिक्स की वजह से मेरा पेपर जो डूबा था, जो भी था. फिजिक्स की वजह से आई थिंक इस साल सबका ही पेपर डूबा है, बिकॉज द पेपर वाज सो अनप्रेडिक्टेबल. लास्ट ईयर का पेपर से कंपेयर करो तो या it was tough also, and in fact I made so many silly mistakes. ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है. Plus it was so lengthy. कितनी भी प्रैक्टिस कर लो. Yeah, it was very lengthy. In fact मैं तो बता रही हूँ, मेरी अप्रोच ऐसी थी कि मैं फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करती थी एंड बाकी सब्जेक्ट्स बाद में. मेरे जो बाकी फ्रेंड्स है जो बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स पे जाते थे, उनके तो फिजिक्स के पेपर छूट गए हैं, लिटरली आधे भी नहीं हो पाए हैं. इस हालत में फिजिक्स हुई है बच्चों की इस बार. I was also at a point कि आधा घंटा बचा है. My section B was left entirely. तो मेरे हाथ कांपने लगे कि कैसे सॉल्व करूं, बट फिर हो गया एंड तक. पर बहुत दिक्कत हुई थी. वो तो है. सेक्शन बी के हर क्वेश्चन टफ था. हर क्वेश्चन टफ था. एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि एक भी क्वेश्चन सॉल्व करो गो फॉर इट. हाँ, एक भी सॉल्व करो तो लग रहा था ये तो बनेगा ही नहीं. फिर नेक्स्ट पे जाओ, वो भी नहीं बन रहा. Right. That physics was very problematic this year. Yeah. And I committed like two very very silly mistakes. Very silly. And ये बहुत सारे बच्चों के साथ हो सकता है. तो that is why I would just recommend तुमसे कि तुम एटलीस्ट अपने नॉर्मल जो मॉक्स हो रहे हैं ना, उनमें एम करो कि मैं 140 या 150 के ऊपर स्कोर करूं. बिकॉज इफ यू स्कोर दिस हाई and then your examination goes bad, you will land at 120 to 130 का score, which is decent, क्योंकि तुम्हारी केमिस्ट्री और बायोलॉजी संभाल लेगी इससे आगे. बट इफ यू आर नॉट स्कोरिंग अराउंड दिस 140 150 थ्रेशोल्ड इन योर नॉर्मल एग्जामिनेशंस, इफ यू आर सपोज जस्ट गोइंग अंटिल 120 एंड तुम्हारा पेपर मेन वाला खराब हो गया, यू विल कम डाउन टू 85 90, which will screw up your paper. So that is why having a command on physics is very important. कि बुरा भी हो तो इतना बुरा ना हो कि selection रुक जाए. हाँ, because 120 130 में you can manage with bio and chemistry, पर उससे कम हो गया तो then you're definitely not going to get selected. Yeah. So there's one more problem for some students कि boards आ रहे हैं, और इस साल you know it is being conducted in 2 parts. So ज्यादा टाइम बोर्ड्स को डिवोट करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को. So how would you suggest that these students go about NEET preparation during boards or before boards? See, I would say कि actually looking at it like हमें कोई दिक्कत हो रही है because we are managing two things together, that is the worst thing you can do. In fact, you should see कि this is actually a very plus point for you, क्योंकि जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं as droppers, they do not read the NCERT. I have seen this in so many students. They do not read the NCERT. But if you're giving your 12th board का examination, you have to read the NCERT. तो इस point पे तो तुम एक edge ऊपर ही हो बाकी droppers से. So बस तुम board 0 NCERT तो तुम अच्छे से पढ़ोगे. You have to go through the NCERT. Make sure you read the summary and points to ponder, because पूरे chapter पढ़ने का तुम्हें time ना भी हो तो तुम ये 2 sections पढ़ के NEET तो ace कर सकते हो. और बाकी बोर्ड एग्जामिनेशन, या डेफिनेटली इसी साल कितने सारे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स थे. एंड इफ यू इवन सेक्शन बी वाले पार्ट में बोलूं, अगर तुम्हें 15 क्वेश्चंस मिल रहे हैं एंड यू हैव टू डू 10, always aim for the ones which are theoretical, because if you go for a numerical part you will invest your time in that. इससे अच्छा है कि तुम पहले theoretical वाले सारे कर लो, एंड फिर अगर suppose you are able to get 6 theoretical questions तो तुम्हें 4 ही न्यूमेरिकल्स करने होंगे, एंड इस तरह तुम्हारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट भी हो जाएंगे. एंड अगर तुम 10 न्यूमेरिकल करने बैठोगे तो तुम पागल हो जाओगे. इसीलिए theoretical is very important, and if you're preparing for boards, this is a very plus point for you.
एंड हाँ वो थोड़ा वो डेरिवेशन वगैरह पढ़ना पड़ता है बोर्ड्स के लिए, तो वो तो But स्कूल वाली ना that कराती। what derivations and all can be managed if you look at the previous year boards papers, and then you'll हाँ get to know बहुत कि आराम what से। are the important topics. तो बस वही टॉपिक्स पढ़ लो, उनके डेरिवेशंस कर लो. I mean we scored decent enough marks थोड़ा सा पढ़ाई करके for boards, so I think that's okay. Yeah, I was a wreck in my class 12th. I scored very bad. I mean in my opinion boards पे ज्यादा ध्यान नहीं भी दे तो चलेगा, हाँ but it's just for the parents राइट, satisfaction and all कि थोड़ा बच्चा अच्छा कर रहा है वो तो बोर्ड्स है। में. हाँ. हाँ हाँ वो तो है। एंड और इनफैक्ट टर्म 2 में तो आई गेस हाफ सिलेबस आ रहा है ना। हाँ. Yes. तो टर्म 2 के हाफ सिलेबस में तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर्स ही क्या है, मॉडर्न फिजिक्स है, ऑप्टिक्स है, उसमें तो ज्यादा डेरिवेशन भी नहीं है। डेरिवेशन वाला पार्ट तुम टर्म 1 में दे ही चुके हो। नहीं, आई थिंक इट्स OMR बेस्ड. फर्स्ट टर्म OMR पे हुआ था. Okay, I have no idea how they are या conducting boards this year. I have no idea. एनीवे, तो आई हैव आल्सो सीन दिस कि देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो कि लगते हैं कि बहुत ज्यादा सॉल्व करना होगा, बट वंस यू रीड द क्वेश्चन पता चलता है ये तो थियोरेटिकल है, किसी एक पॉइंट से क्लियर हो गया. या फिर हाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो यूनिट एंड डायमेंशन लगा के फॉर्मूला से यूनिट से या निकल जाता है. एग्जैक्टली या हाँ. कई बार तो यूनिट्स 4 अलग दिए होंगे, एंड अगर तुम्हें पता है कि वो पूछ क्या रहा है, उस स्टेटमेंट की यूनिट क्या होती है, तो तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती है। यू हाँ. जस्ट टिक द यूनिट व्हिच इज करेक्ट इन द ऑप्शंस। सो फॉर दैट यू हैव टू लाइक रीड द ऑप्शंस फर्स्ट एंड देन गो टू द क्वेश्चन। वरना तुम क्वेश्चन पढ़ने लगोगे तो पहले ही तुम्हें प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। इससे अच्छा पहले दैट इज हाउ यू स्मार्टली अटेम्प्ट द पेपर। हाँ. ऑल्सो दिस कम्स आफ्टर यू गिवन इनफ नंबर ऑफ टेस्ट. बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ये सारे ट्रिक्स तुम खुद ही डेवलप कर लेते हो, लाइक कोई आके सिखाता नहीं या है मेनली. हाँ ये तो तुम्हें खुद ही अकल आ जाती है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर दैट। Moving on to the conclusions of this video, I would say कि solve a lot of questions and read theory also. Give importance to theory also. Don't practice very high level questions like JEE वगैरह के questions practice नहीं करो. NCERT को importance तो like देवांशी said कि summary and points to ponder ये सब पढ़ना चाहिए. And हाँ, and clear your doubts. अपने डाउट्स को छोटा मत या समझो. लाइक एनी सिली डाउट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नीट में वही क्वेश्चन आ सकता है. सो लाइक हाउ डिड यू क्लियर योर डाउट्स? एक्चुअली इट वाज लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तो एक साल के आई डिड कोचिंग एंड एक साल आई डिड सेल्फ स्टडी। तो पहले साल जब मैं कोचिंग में थी तो तब तो आई वाज एबल टू क्लियर माय डाउट्स विद माय टीचर्स ओनली। द सेकंड ईयर व्हेन आई वाज ऑन माय ओन, व्हाट आई डिड वाज आई डाउनलोडेड दिस ऐप कॉल्ड डाउटनट, या फिर गूगल लेंस से भी तुम अपना काम निकलवा सकते हो। तुम्हें जो भी क्वेश्चन लाइक इफ यू आर नॉट बीइंग एबल टू आंसर देम, जस्ट क्लिक अ पिक्चर या गूगल लेंस पे डाल दो, तुम्हें ऑनलाइन यूजुअली मिल जाते हैं आंसर्स, बिकॉज बहुत फेमस बुक्स होती है नीट की, मिल जाते हैं आंसर्स। हाँ, और वही बात है कि क्वेश्चंस सेम ही रहते हैं हर बुक में, तो अगर कोई एक अच्छी हाँ बुक मिल गई है तो यू कैन रेफर टू दैट आल्सो. या श्योर यू कैन डू दैट। अदरवाइज बहुत ज्यादा दिक्कत है तो किसी दोस्त से पूछ लो या ऑनलाइन किसी को रेफर कर लो, किसी को भी कर लो। बहुत ऑप्शन होते हैं डाउट क्लियर करने के लिए, बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं होती है ये। हाउ मेनी आवर्स डिड यू डिवोट ऑन अ डेली बेसिस पढ़ने के लिए, लाइक स्ट्रिक्टली पढ़ने के लिए? सो फॉर मी ऐसा था कि आई डिड नॉट प्लान कि कितने आवर्स करने. इट वाज मोर लाइक आज के दिन इतने चैप्टर्स करने, एंड all the time other than eating, sleeping and other activities, even my recreation, so apart from that all the time I devoted to studies. मतलब थोड़ा distraction तो हो ही जाता था, but more or less कि आज का काम अगर खत्म हो गया then I am done for the day. Otherwise मैं late तक भी extend कर लेती थी. So what did you So how do? much, like on an average, कितना निकल पाता था in a day? I would say efficiently 8 to 9 hours. That is, Okay. yeah. Mine was very weird actually. मैंने जब स्टार्ट किया था पढ़ना, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में ज्यादा एग्जाम में टाइम भी बहुत होता है, 6-7 महीने बाद एग्जाम में उतना मन नहीं लगता पढ़ने में। बट या आई मेड दीज वीकली शेड्यूल्स, उस पे भी मैंने इम्पोर्टेंट है।
तो आई यूज टू मेक दीज वीकली शेड्यूल्स एंड मुझे ये पता था कि मुझे इस वीक में इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं, तो उस हिसाब से आई यूज टू स्टडी. तो आई वुड से पिछले नवंबर दिसंबर में आई यूज टू स्टडी अराउंड 4 to 5 hours एफिशिएंटली एंड वो धीरे धीरे बढ़ता गया एंड जैसे एग्जाम पास आ रहा है तो फिर तो वो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था. फिर हाँ, इट वाज लाइक एग्जाम आई वाज 12-13 hours a day बिकॉज एग्जाम इतना पास आ गया ना, तो खुद स्ट्रेस में तुम ज्यादा पढ़ोगे, तो या दैट इज 20 नॉट अ days प्रॉब्लम. बिफोर नीट, तो फिर इट्स लाइक स्टडिंग ऑल डे, ऐसा लगता था और टाइम मिल जाए. हाँ, और टाइम मिल जाए. 2 दिन पहले भी लगता था थोड़ा सा और पोस्टपोन हो जाए. बस थोड़ा सा और पढ़ लेते, लाइक हाँ. थोड़ा और रिवाइज कर लेते तो ये अच्छा हो जाता, ऐसा यस, लगता है. बट वो होता नहीं है कभी कि मैं अब पूरी तरह तैयार हूँ. ऐसा पॉइंट हाँ ही नहीं आता, मेरे को लगता है. हाँ, और ये आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि एक बार पूरा पढ़ लेंगे फिर ही टेस्ट देंगे. सो पूरा तो कभी नहीं होने हाँ, वाला है. नहीं वो कभी नहीं होगा. इनफैक्ट तुम टेस्ट ही नहीं दे पाओगे एंड तुम्हारा मेन पेपर आ जाएगा अगर तुम इस तरह से पढ़ रहे हो तो. टेस्ट देने हैं चाहे तुम्हारी तैयारी हो या ना हो, डजेंट मैटर. इफ यू कीप गिविंग टेस्ट तुम अपने आप तैयारी करते जाओगे. इस चीज का वेट मत करो कि नाउ व्हेन माय प्रिपरेशन विल बी डन ओनली देन आई विल गिव द टेस्ट. दैट इज नॉट हाउ इट. How did you manage all the 3 subjects? Like all the 3 subjects in one day only, or did you divide days for separate subjects? नो, इट वाज लाइक मेरे वीकली शेड्यूल में मुझे पता था मुझे फिजिक्स में ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, बायोलॉजी में ये करना है. एंड इट वाज लाइक व्हेन आई गिव द पेपर आई हैव टू अप्रोच ऑल द 3 सब्जेक्ट्स एट वंस, राइट? सो आई डिड नॉट कीप एनी डे कि मेरे को ये ही सब्जेक्ट आज पढ़ना है. इनफैक्ट एक भी दिन ऐसा शायद नहीं होगा जिस दिन मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट को ही पढ़ा होगा. आई यूज टू स्टडी ऑल 3 टुगेदर विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज तुम्हें तीनों साथ में डील करने हैं ना यार. सो यू शुड बी हैबिचुअल कि मुझे तीनों साथ में पढ़ने भी हैं. ये हो सकता है कि तुम ज्यादा टाइम बायोलॉजी को दे दो अगर बायोलॉजी का कोई टफ टॉपिक है तुम्हारे पास एंड फिजिक्स का इजी है तो फिजिक्स को थोड़ा कम दे दो. ये हो सकता है, बट स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर. तो मेरा अप्रोच थोड़ा अलग था, बट आई थिंक यू कैन फॉलो वट एवर सूट्स यू. आई यूज टू स्टडी 1 subject a day only. मतलब जब तक I have not finished all the chapters I've decided for the day. Like physics, कभी कभी ऐसा भी होता था कि I'm studying physics for 2 or 3 days continuously and then I'll go on to chemistry. तो that worked for me क्योंकि मेरे से एक दिन में तीनों subjects नहीं होते थे. I could not give sufficient time to all the subjects. So I used to follow that. एवरीबडी हैज अ डिफरेंट अप्रोच. मेरा क्या था ना, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ तो मैं एक सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता. आई जस्ट गॉट बोर्ड एंड आई हैड टू हैव अनदर सब्जेक्ट इन माय हैंड. वो था, ये इस तरह से होता था. तो जिस तरह से तुम्हारी पर्सनालिटी है उस तरह से आई थिंक यू शुड एडजस्ट योर डेज. So thank you guys for joining us today, and we'll keep making more such videos together, I hope, and we'll keep solving your doubts. So thank you so much for watching this video. And if you want, you can come and visit my channel sometime. Yeah, sure. Please check her channel out and give some love to my channel as well. Yeah, for sure. Thank you. Okay, bye-bye. Bye.